بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ جینا خاتون گمسم فرش پر بیٹھی تھی۔ ڈھلتی عمر نے اس کے ریشمی بالوں میں چاندنی بھرتی تھی، مگر آج بھی اس کی آنکھوں میں امنگوں کے دیے روشن تھے۔ اس کی آنسوں سے چھلکتی آنکھوں میں 20 سال پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ ریشمی گٹھری سی ہوا کرتی تھی۔ گاؤں کا ہر لڑکا اس کے حسن کا دیوانہ تھا، مگر وہ کہاں کسی کی پرواہ کرتی تھی۔ ہرنی جیسی چال اور گھنے لمبے بالوں کے ساتھ جب وہ لہراتی ہوئی گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتی تو تعقب کرنے والی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے، مگر اس کے انداز میں ایک بے نیازی تھی۔ اس کی نظر انتخاب گاؤں کے سب سے گبرو جوان بالے پر پڑی تھی، جو اپنی بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ نندو کے جھرمٹ کے باوجود بھی اسے بالے سے شادی کرنا گھاٹے کا سودا نہیں لگا تھا۔ بالا بھی تو اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار دیتی۔ بالے کی نظروں میں بھی اگرچہ اس کے لیے پسندیدگی تھی، مگر یہ تو اسے شادی کی رات معلوم ہوا کہ بالا سچ مچ اس کا دیوانہ تھا۔ گھنٹوں اس کی راہ تکتا رہتا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ جینا ایک دن اس کی ہو جائے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی تھی اور آج وہ سجی سنوری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالے کے تو انداز سے ہی والہانہ پن چھلکتا تھا۔ یہ بات باقی گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی، سبھی ان کی جوڑی پر رشک کرتے تھے۔ بالا اگر رات کو گھر دیر سے آتا تو اس کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ہوتے تھے۔ نندیں سمجھ جاتی کہ جینا کے لیے وہ کچھ کھانے کی خاص چیز لایا ہے، مگر گھر میں زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور کو نہ دے پاتا تھا۔ جینا کے لاڈ اٹھاتے اٹھاتے 2 سال گزر گئے تھے، مگر اللہ نے ابھی تک اس کی گود ہری نہیں کی تھی۔ اب تو وہ ساس اور نندوں کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگی تھی۔ جینا کے سر پر بھی بالے کی دوسری شادی کی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اولاد پیدا کرنا چاہتی تھی، مگر اولاد دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر بار انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ جینا ہر روز اللہ سے اولاد کی دعا کرتی تھی۔ ادھر ساس اور نندو نے باقاعدہ بالے کی دوسری شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اب نندوں کی بھی شادی کی عمریں ہو رہی تھیں، سو یہی گمان کیا جا رہا تھا کہ کسی ایک بہن کی شادی کے ساتھ بھائی کی دوسری شادی بھی کر دی جائے گی، مگر اس بار خدا نے اپنا کرم کیا اور جینا امید سے ہو گئی۔ محلے کی نوراں دائی نے جب یہ خبر سنائی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہیں جینا سے خدا درجے کا بیر رکھنے والی نندوں کے منہ بھی کالے ہو گئے۔ اب ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ جینا پر کیا طنز کریں، کیونکہ امید سے ہونے کی خبر نے اسے ایک مکمل عورت بنا دیا تھا۔ بالا پھر سے جینا کے چاؤ اٹھانے لگا۔ وہ جو اسے تھوڑا سا لاپرواہ ہو گیا تھا، اب اس کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ جینا بھی خدا کے ہاں شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ 9 مہینے کے طویل انتظار کے بعد ایک ننھی منی سی پری اس کی گود میں آئی تھی، جسے پا کر اسے احساس ہوا تھا کہ ماں ہونا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ مگر پھر آنے والے چند سالوں میں اسے احساس ہوا اس کی خوشی تو ادھوری تھی۔ وہ ماں تو بن گئی تھی، مگر اس معاشرے میں بیٹیوں کی ماں ہونا ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی جرم کی سزا اب دھیرے دھیرے اسے ملنے لگی تھی۔ بالے کی نگاہوں میں کم ہوتی اس کی محبت اکثر اسے ڈرا دیا کرتی تھی۔ اس کے بس میں بیٹا پیدا کرنا نہیں تھا، وہ کہاں سے بیٹا لاتی؟ اور پھر بیٹے کی امید میں بالے نے 4 بیٹیاں پیدا کر لیں۔ اب تو بیٹے کی خواہش اسے دن رات تڑپانے لگی تھی۔ ہر بار بیٹی کی پیدائش پر وہ جینا سے منہ پھیر لیتا تھا۔ جینا سر جھکا کر خاموش ہو جاتی۔ 9ویں بار جب وہ امید سے ہوئی تو اس کی صحت کافی گر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا اولاد پیدا کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس کی ہڈیاں جواب دینے لگی تھیں۔ حالانکہ ابھی وہ صرف 30 سال کی ہوئی تھی، مگر اس کی نکاہت دیکھ کر لگتا تھا کہ عمر کی 50 بہاریں دیکھ چکی ہے۔ ہاں، مگر جینا کی خوبصورت شہد جیسی رنگت میں آج تک کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اچھے کپڑے پہن لیتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ 9 بچیوں کی ماں بن چکی ہے۔
9वें बच्चे की पैदाइश पर तो बाले ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसे साफ कह दिया कि अगर अगली बार भी उसने बेटी पैदा की तो वो वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे देगा। आज तक वो उसके लिए एक वारिस पैदा न कर सकी थी। तलाक के लफ्ज़ ने जीना के हवासों पर बिजलियां गिरा दी थी। वो सोच भी न सकती थी कि बाले जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर एक वारिस की खातिर उसे तलाक भी दे सकता है। पहले तो फिर कुछ उम्मीद बाकी थी, मगर अब दिल में हर वक्त यही धड़का लगा रहता कि अगर बाले ने उसे तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी। वो तो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। ज़िंदगी में उसने किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। दिन रात इसी फिक्र में रह रहकर वो आधी हो गई थी। अब तो उसका दिल चाहता था कि अगली बार उम्मीद से होने से पहले ही वो अपनी जान दे दे, मगर अपनी 9 बच्चियों ने उसे ज़िंदा रहने पर मजबूर कर दिया था। वो उनका ख्याल रखती, उनके साथ खेलती तो उसे भला मालूम होता। ज़िंदगी बहार सी लगती थी, मगर न जाने क्यों बाला अपनी बेटियों को मुंह भी नहीं लगाता था। बड़ी बेटी के थोड़े बहुत नाज जो उठाए थे वो भी इस उम्मीद पर कि शायद अगला वारिस पैदा होगा, मगर ऐसा न हो सका। अब तो गांव के हर घर में जीना की 9 बेटियों के चर्चे थे जो उसी की तरह खूबसूरत थीं। जीना की तरह उनके भी हुस्न के चर्चे थे, मगर जीना की सोचों का महवर एक उसका वारिस था। इंसान जब मजबूर हो जाता है तो उम्मीद की हल्की सी किरण को भी एक आफताब समझ लेता है। जीना की जब सहेली ने उसे बताया कि साथ वाले गांव में एक पीर साहब आए हैं जिनके पास जाने से सभी औरतों के यहाँ औलाद पैदा होती है, जिनके बेटे की ख्वाहिश होती है उनको बेटा हो जाता है, और जिनकी कोई और मन्नत मुराद होती है वो भी पूरी हो जाती है। जीना सोमो सलात की पाबंद थी। इन बातों पर वो कतई यकीन नहीं रखती थी, मगर जीरा ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि उसे यकीन करना पड़ा। कुछ तरद्दुद के बाद वो उसके साथ चली गई। अपनी सास और नंदों से पुरानी सहेलियों से मिलने का बहाना करके वो दूसरे गांव चली गई जो उनके गांव से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था और आने जाने के लिए तांगा गाड़ी भी मौजूद थी। जुमेरात वाले दिन वो शाहाना के साथ पीर साहब के आस्ताने के लिए चली गई। उसका दिल उमंगों से भरा हुआ था। लगता था वो पीर साहब के आस्ताने से बेटा लेकर आएगी, ये समझते हुए भी कि वो शिर्क की मुर्तकिब हो रही है। उसके कदमों में पीर साहब के आस्ताने के पास आकर तेजी आ गई। आस्ताने पर पहुंची तो उस कमरे में और भी औरतें थीं जो शायद उसी की तरह मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ आई थीं। अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए वो एक तरफ को होकर बैठ गई। पीर साहब कुछ हजरात से फारिग हुए तो उसे कमरे में बुला लिया। उन्होंने पुरजलाल निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो सहम कर रह गई। पीर साहब ने सर से पांव तक उसे देखा और बोले, तुझे बेटा चाहिए? जीना तो उनकी इस बात पर हैरान रह गई। वाकई पहुंच वाले बुजुर्ग लगते थे। गांव की हर दूसरी औरत को बेटा ही तो चाहिए था। सो पीर साहब के तुक्के कमोबेश सही लगते थे। पीर साहब ने उसे अपना हाथ आगे करने का कहा। उसकी नब्ज पर हाथ लगाकर वो बोले, तुम पर तो काफ़ी गहरी काट की गई है। इस काट को ख़त्म करने के लिए मुझे 3 अमल करना पड़ेंगे, उसके बाद तुझे बेटा हो जाएगा। पीर साहब ने कहा तो जीना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। क्या वाकई पीर साहब? मैं तो जी बड़ी दुखियारी हूँ। मेरे शौहर ने तो साफ कह दिया है अब के बेटा न हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं कहाँ जाऊँगी पीर साहब? मेरे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। पीर साहब ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाए और अगली सुबह उसे आने का कह दिया। उनका अमल फजर के बाद शुरू होना था। जीना को भी इत्मीनान सा हो गया था। फजर के वक्त अगरचे घर से निकलना मुश्किल था, मगर घर से पानी लाने की खातिर वो यूं भी बाहर आती थी, सो कुछ ख़ास मसला नहीं था। खैर अगली सुबह वो मुंह अंधेरे ही पीर साहब की तरफ चली गई। उसका शौहर सो रहा था, नंदें भी बेखबर पड़ी थीं। यूं भी घर का सारा काम वही करती थी। उनके उठने से पहले उसे नाश्ता तैयार करना होता था। जानवरों का चारा भी वही काट कर लाती थी, सो उसके बाहर जाने पर किसी को शक न हुआ। पीर साहब के आस्ताने पर पहुंची तो वो जैसे तैयार बैठे थे। जीना को देखकर उनकी मुंतज़िर निगाहों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने जीना को वहां बैठने का कहा और फिर जलाल में अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे भी वहीं बुला लिया। कमरे में हल्की सी बत्ती जल रही थी। पीर साहब के चेहरे पर वहशत टपक रही थी। थोड़ी देर वो अमल करते रहे। मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने के बाद उन्होंने वो बत्ती भी बंद कर दी।
कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। जीना की तो सांसें बेतरतीब होने लगी। उसे डर भी लग रहा था, कुछ अनजानी कुव्वतों से और कुछ पीर साहब की कुर्बत से, मगर वो ना चाहते हुए भी खामोश रही। यहाँ तक कि पीर साहब ने उस पर बाकायदा दस्तराजी शुरू कर दी। उसने मज़ाहमत की तो बोले, बेटा हासिल करने का अमल यही है। आज तक जितनी औरतों ने भी उन्हें खुश किया है, वो बेटे की मुराद पाकर ही गई हैं। आज तक जीना को उसके शौहर के अलावा किसी ने उस नज़र से देखा तक न था, और ये अजनबी शख्स तो उसे छूने का मुर्तकिब हुआ था। जीना के तो तन बदन में आग लग गई। उसने पीर साहब के मुंह पर थूका और गालियां बकती हुई वहां से निकल आई। पीर साहब हक्का बक्का उसे जाता देख रहे थे। शायद उन्होंने उसे काबू करने की कोशिश इसलिए नहीं की कि गांव की बाकी औरतें बिना किसी मज़ाहमत के ही अपनी इज्जत उनके कदमों में रख देती थीं। पीर साहब को अपना शिकार हाथों से जाने का बहुत दुख था, मगर अपनी शोहरत के पेश नज़र वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जीना उनके आस्ताने से बाहर आए तो उसका मारे घबराहट के बुरा हाल हो रहा था। उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो खुदा से बेटे की दुआएं मांगती हुई घर आ गई, मगर उसे अनजाने से गुनाह का एहसास हो रहा था, जिसके सरजद होने से पहले ही वो आस्ताने से निकल आई थी। शाहाना से उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुबादा उसके बारे में कोई बात ही ना मशहूर हो जाए, और वैसे भी शाहाना उसकी मुखलिस दोस्त थी, उसके बारे में फ़िक्रमंद रहती थी। इस वाक़े के 1 महीने बाद ही जीना को पता चला कि वो एक बार फिर उम्मीद से हो गई है। उसके तो पाँव मन मन भारी हो रहे थे, दिल खौफ से पत्ता पत्ता लरसता था। न जाने इस बार क्या होगा, उसका शौहर उसे तलाक ही न दे दे। वाले के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो रोज़ उसे तलाक की धमकी देता था। बेटा न होने की सूरत में उसे घर से निकाल दिया जाना था। उसने भी हिम्मत और कोशिश नहीं छोड़ी। एक और सहेली के बताने पर वो अपने कस्बे के इकलौते क्लिनिक में आ गई। यहाँ हफ्ते में 1 दिन बड़ी डॉक्टरनी बैठती थी, जो 1 दिन सब औरतों को मुफ्त इलाज और मशवरे देती थी। जीना को भी वारिस चाहिए था, या शायद जीना के शौहर को, अगरचे वरासत में महज एक कच्चा मकान, चंद बकरियां और कुछ खेत थे, लेकिन बाले के लिए इस विरासत का वारिस पैदा करना ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद बन चुका था। जीना ने अपनी छोटी बेटी को कंधे पर लटकाया, दूसरी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, गिरती पड़ती क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई। क्लिनिक में उसी जैसी औरतें बैठी थीं जो अपना कोई न कोई दुख लेकर डॉक्टरनी साहिबा के पास आई थीं। डॉक्टरनी साहिबा ने खिलाफे तवक्का उसकी पूरी बात गौर से सुनी। साफ साफ जीना ने भी कह दिया था कि अगर बेटा पैदा न हुआ तो उसका शौहर उसे तलाक दे देगा। डॉक्टरनी काफ़ी रहमदिल लगती थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जीना की कहानी सुनकर उसे दिली सदमा हुआ था। वो ये सोच भी न सकती थी कि गांव के लोग बेटे के हुसूल के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। उसने कुछ पुरसोच अंदाज में जीना को देखा और बोली, तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा इलाज है कि तुम 1 नहीं 2 बेटे पैदा करोगी। डॉक्टरनी की मुस्कुराहट गहरी होती गई और वो कुछ समझ न पाई। डॉक्टरनी ने उसे लेटने का इशारा किया और बोली, तुम आंखें बंद करो, जब मैं कहूँगी तो आंखें खोलना। भोली वाली जीना ने ऐसा ही किया, आंखें मूंद कर लेट गई। डॉक्टरनी ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और बोली, या अल्लाह, आज मैं किसी की खुशी का तुझसे सवाल करती हूँ। मैंने आज तक तुझसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जो किया है तूने अता किया है। मैं तुझसे आज इस औरत की खुशी का सवाल करती हूँ और ये मन्नत मानती हूँ कि अगर इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं आज के बाद 1 दिन की बजाय पूरा हफ्ता गांव की औरतों का मुफ्त इलाज करूँगी। मैं तेरे बंदों की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी त्याग दूँगी। मेरे मालिक, मुझे खाली हाथ ना लौटाना। डॉक्टरनी के दिल में भी अजीब सा सुकून उतर आया था। उसने भोली भाली जीना को मुखातिब करके कहा, तुम जाओ और अपने शौहर को ये खुशखबरी सुना दो कि इस बार तुम्हारे 1 नहीं 2 बेटे होंगे। सच डॉक्टरनी साहिबा, क्या वाकई में मेरे 2 बच्चे होंगे? उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। डॉक्टरनी ने हाँ में सर हिलाया और जीना खुशी खुशी उसके क्लिनिक से बाहर आ गई। आज तो उसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। लगता था उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो।
وہ घर आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बाले ने उसे खुश देखकर उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो बोली, तुझे पता है बाले, इस बार मैं तुझे वारिस दूंगी, वो भी एक नहीं 2 वारिस। उसने यकीन से कहा तो बाला भी ठटक कर रह गया। हैं, ये तुझे किसने बता दिया? क्या इल्हाम हुआ है? बाले की बेयकीनी को देखते हुए वो इतराते हुए बोली, मैंने नहीं कहा, ये तो कस्बे वाली डॉक्टरनी साहिबा ने बताया है। वो शहर से पढ़कर आई है, जो बताती है वो सच होता है। जीना के मुंह से ये लफ्ज़ निकलते ही बाले ने तो आसमान सर पर उठा लिया। उसकी खुशी की इंतहा न थी। पूरे गांव में उसने मिठाई बांटी थी। लगता था कि आज पहली बार वो बाप बनने वाला है। सच है, बेटे का बाप बनने पर मर्द की खुशी ही और होती है। खुदा खुदा करके ये दिन भी गुजर गए। खिलाफ़े तवक्का उसकी डिलीवरी भी इस बार कस्बे वाले हस्पताल में होनी थी। डॉक्टरनी ने उसे ख़ास हिदायत की थी कि उसे डिलीवरी यहीं पर करवानी है, वरना कोई मसला भी हो सकता है। डॉक्टरनी की बातों पर तो अब पूरा घराना ईमान की हद तक यकीन करने लगा था। 9 माह के बाद जब वो बड़ी मुश्किल से उसके क्लिनिक में पहुंची तो डॉक्टर साइमा के चेहरे पर अजीब सी कशमकश थी। उसने सर पर दुपट्टा अच्छी तरह जमाया हुआ था और वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। बाला उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो उसकी मौहसिना थी। खैर, डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा। तकरीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर साइमा लेबर रूम से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से प्रेयर रूम की तरफ चली गई, जहां कदम रखते ही वो खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो गई। समझ में न आता था कि वो खुदा का किस मुंह से शुक्र अदा करे। या अल्लाह, तूने मेरा इतना बड़ा भरम रख लिया, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। डॉक्टर साइमा ऐसे खुश हो रही थी जैसे आज वो खुद मां बन गई हो। बाले की रही सही बेयकीनी भी यकीन में बदल गई थी। उसे जब पता चला था कि वो 2 बेटों का बाप बन गया है, उसने तो जीना को अपनी पलकों पर बिठा लिया। 2 नन्हे नन्हे बेटों के साथ उसकी बाकी 9 बेटियों के नसीब भी खुल गए। अपनी बेटियों को भी वो प्यार करने लगा। आज डॉक्टर साइमा, जो कि मेरी सहेली है, अपनी लाख शोहरत के बावजूद भी उसी गांव में औरतों का मुफ्त इलाज करती है। मैं अक्सर उससे पूछती रहती थी, साइमा, तुम इतनी काबिल होकर भी आज तक इस गांव में बैठी हो। इस गांव से तुम्हें तनख्वाह भी कम मिलती है, फिर आखिर क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ जोड़े रखी है। आज उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं भी आबदीदा हो गई। सच है कि जो खुशी और जो सुकून इंसान को किसी को खुशी देकर मिलती है, वो शायद दुनिया का बड़ा से बड़ा ओहदा और बड़ी से बड़ी नौकरी भी नहीं दे सकती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।